Welcome back to Women Wise. Today we have with us my friend Tejal Bhagat. Tejal is a chartered accountant, a practicing Bowen therapist and an active member of Brahma Kumari, and she is also a trainer. To know more about my dear friend Tejal, let's get in conversation with her. Welcome Tejal. Thank you. Tejal, तुम इतनी सारी चीजें करती हो. You are a good housewife, I know. Apart from that, you are a chartered accountant. You are a Bowen therapist. उसके बाद में ब्रह्म कुमारी का भी you are very active member. How do you manage all these things? I take one day at a time and just tell Shiv Baba, okay, chalo, let's see how the day is going to go, and enjoy the day doing each and everything. And I find that at the end of the day, all the things which were required by me to be done have been done. Oh, great! So Shiv Baba is there. Yes. Shiv Oh. Good. So, you know, Tejal, when I see you, you come across as a very calm, composed person. You don't have complaints. किसी भी चीज का, I've never seen you frustrated and all these things. So, maybe you are as a person by nature like that, or getting introduced to Brahma Kumari has helped. We'll come to Brahma Kumaris, but I want to know right now about Bowen therapy. So, how did you get introduced to Bowen therapy? I was introduced, in fact, I was kind of forced to. My husband had slipped disc since the age of 9. He was playing in the garden and went down the slide and probably it hurt his tailbone. And since then it seems he had slipped disc. So ours is an arranged marriage. So after about 2 years, one day he had caught up his back and they call it a spine attack. And after that, about 2-3 days of rest and painkillers, he would be good. But way back in say 2007, he was so bad that he went to lift a box and he was bent. He was 90 degrees. Oh my God! And he couldn't straighten up for a week. So that time, our neighbor introduced us to this Bowen therapy and said, since you are trying all the things, why not try this one? Yeah. So with this, after about 4 sessions that time, he was good and he could go to work. Now he has a normal spine. This was when his age was about 38. Okay. So since then he has a normal spine report. After that, he in fact paid my fees for learning without even asking me. You're going to learn this. So, and in this it's like Bowen therapy is very much practical. The books to learn are very thin, but you have to practice on people, because it could be a baby, it could be a 90-year-old person, it could be a fat thing, a lady, a gent. So to get the correct moves, you have to practice on people. And then when we keep practicing by learning, those are the same people who become our clients later. Okay. So you don't use any kind of medicine or anything? No, no medicines, only hands and a single clothing, like a track pant and t-shirt for men and a salwar kameez for females. Okay. So in Bowen therapy, there must be some learning procedure. You had gone to Australia for learning, for some training and all? No, I had gone to Australia to become a trainer. I can now teach this therapy, having been practicing it since last more than 12 years. Okay. So in this therapy, it's like there are 7 modules. Each module is just for 2 days. And we teach 2 modules at a time, and after that we give a gap of 1.5 months or to 2 months. In that period, the student is supposed to practice and build up a logbook of 100 hours. In this, they have to also learn surface anatomy physiology. So when we put our fingers on the body, we know the structure beneath, the organ beneath which we are going to activate. Plus we also learn about muscles, the musculoskeletal system. So
which muscle helps in what movement we learn. So when a person tells us he is not, say, able to bend in a particular bending position, his back is hurting, then it's the psoas muscle which has gone in contraction. Or if it is he has pain which is traveling from his bum right to the feet, it's the sciatic pain which is affected. So in this way, even hand, like, you know, if the pain is up beyond this point, it's this area which is affected. But if the person is not able to lift from here, it's the lower area which is. So then we do moves according to the pain, and that's how we are able to help the person. बोवन थेरेपी में बहुत सारे चीजों का, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है. जैसे तेजल ने बताया कि उसके हस्बैंड की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, स्पाइन गॉट करेक्टेड, और उसके बाद में किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हाथ में दर्द है, बैक एक है, काफी सारी चीजें तेजल ने ट्रीट किए हैं. मैंने भी काफी सारी सक्सेस स्टोरीज इसकी सुनी है, काफी लोगों से इसकी तारीफ भी सुनी है कि शी हैज डन वंडरफुल जॉब. तेजल, कैन यू जस्ट टेल फॉर आवर व्यूअर्स फ्यू स्टोरीज, कुछ बताओ. आई थिंक नाउ फॉर आवर हिंदी व्यूअर्स एज वेल, तो बताओ कुछ ऐसे क्या क्या चीजें आपने ठीक की है जो मेजर आपका. ठीक है, मैं से ऊपर के बॉडी के पार्ट से शुरू करूँ तो शोल्डर पेन के लिए आते हैं लोग मेरे पास. डॉक्टर्स हो सकते हैं, इवन दूध वाले या किराने वाले, जिनको डॉक्टरों ने फ्रोजन शोल्डर की वजह से या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बेल्ट डालते हैं गले में, उनको डॉक्टरों ने 1 किलो भी उठाना मना किया. कोई दूध वाला है या किराने वाला है, वो 1 किलो भी ना उठाए तो धंधा कैसे चले. तो काफी ऐसे लोग आए हैं मेरे पास जो वो ये थेरेपी 3-4 सेशंस करके ठीक हो गए, और फिर मुझे फोन करके बताते कि अब वो 100 किलो भी उठा लेते. अरे एंड वो भी जिनकी एज 55 प्लस है, बिकॉज जो धंधा है वो तो करना है, वो तो छोड़ नहीं सकते. अब दूध वाले हैं, उनको भी वही क्रेट उठा के रखना है, तो उसके लिए तो डे टू डे एक्टिविटीज तो चलेगी उनका. यस. तो एक ये फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है. अब लोअर बैक पेन का, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की ठीक हो, वैसे कई ऐसे एक 24 साल का बच्चा आया था जिसको बर्थडे बम्स में स्लिप डिस्क हो गया. तो फिर पेरेंट्स 4 सेशन बाद वो ठीक तो हो गया, लेकिन फिर पेरेंट्स को होता है कि अरे ये बोल तो रहा है कि पेन नहीं है, एक्चुअली क्या हुआ, स्लिप डिस्क ठीक हुआ, तो उसको नॉर्मल स्पाइन रिपोर्ट है. अच्छा, लोगों ने फिर टेस्ट करवा के करेक्ट वापस कंफर्म किया. और एक 56 ईयर ओल्ड थे, उनको भी वो एक क्यूरियोसिटी या कौतूहल कहे तो था कि अरे अंदर क्या हुआ, तो उन्होंने भी वापस जाके अपना MRI कराया तो ठीक हो गया था. तो ये एक स्लिप डिस्क मेरे मेजर पेशेंट्स लोअर बैक पेन और लेग पेन के, साइटिका जैसे पेन्स भी जिनको 20-20 साल पुराना रहता है वो भी ठीक हो जाते हैं. नी पेन्स ठीक होते हैं. हालांकि नी पेन में मेरी मैं सच बोलना चाहूंगी, मेरी अगर लोअर बैक पेन में मेरी 90% तक की सक्सेस रेट है. नी बहुत कॉम्प्लेक्स, चेक करके देखो, ट्राई करके देखो, बिकॉज आपको कहीं कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई आपको मेडिसिन नहीं दे रहे, आप एक बार ट्राई करके देखो, बिना सर्जरी के ठीक होता है तो नथिंग लाइक इट. यस. तो ये हो गए मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज. देन वी आर एबल टू हेल्प इवन इन कॉन्स्टिपेशन. लाइक बच्चे आते हैं आजकल मेरे पास, 2-3 बच्चे आए थे जिनको एक बॉर्न कॉन्स्टिपेटेड था, जिससे 3-4 साल बाद समझ में आया माँ पेरेंट्स को कि इसको अनीमा देंगे तो ही वो पॉटी जाता है, और फिर वो ऐसा एक लॉक जैसा निकलता है, खून भी निकलता है. तो मैंने बोला चलो देखते हैं इससे ये करके. तो वो पहले सेशन के बाद ही नेक्स्ट डे इटसेल्फ अपने आप गया, जो अपनी वो 6 साल की जिंदगी में कभी. That's great, yeah, that's great. एंड वो वीक में वो 3 बार ही गया. फिर सेकंड सेशन के बाद रोज. आपने वो बताया था हाइट भी किसी की इम्प्रूव की है. यस, हाइट भी इम्प्रूव होती है. ओनली थिंग इज वो ग्रोइंग ईयर्स हो,
से 12 to 20, 18-20 ईयर्स के बीच में। तो उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 सेशन करते हैं बच्चों के, एंड फिर उनको कहते हैं कि आप 3 महीना वेट करो। उतना टाइम हमको बॉडी को देना पड़ता है कि वो 3 महीने में 1 इंच 1.5 इंच बढ़ जाए। रिस्पॉन्सिबल। यस। तो काफी ऐसे बच्चों की 1-1.5 इंच बढ़ गई हाइट। एंड प्लस उनको जो भी एक्स एंड पेन्स थे ग्रोइंग ईयर्स के, वो भी कम हो गए। एट टाइम्स बच्चों को ऐसा होता है कि हड्डी बढ़ती है पर मसल नहीं बढ़ा, तो वो जगह पेन करती है। दे आर ओनली कंप्लेनिंग टू द पेरेंट्स की पैर। हाँ, ये मैंने सुना है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम मैंने सुना है ग्रोइंग चिल्ड्रन में, जो उनको मसल्स में पेन बहुत होता है बिकॉज ऑफ ओके दिस इज द इशू। 1-2 मेरी 2 इवन लेडीज हार्मोनल इश्यूज वी आर एबल टू हेल्प इन, मेनोपॉजल हो या आजकल जो पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम्स आते हैं, पीरियड्स तो वो रेगुलराइज हो जाते हैं। एंड आई हैव 1 बोवन बेबी। ओह माय गॉड, ओके। मतलब बोवन बेबी, सो इनफर्टिलिटी भी। हाँ, ओह माय गॉड, अच्छा, दैट्स ग्रेट। सो एक चीज कर सकते हैं तेजल, जैसे आप इतनी सारी चीजें आप ट्रीट करते हो, तो आप क्या कोई आपके पास में ब्रोशर होगा कोई जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, तो इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम दे कैन कॉन्टेक्ट यू और गेट इन टच। यस, I'll give you my brochure, you can put it on the slide. एंड लिंक में ऐसा है कि अगर आप बोवन थेरेपी और तेजल वगैरह डालते हो पूना, तो मेरा गूगल मैप्स पे खुल जाता है। तो गूगल हैज दिस फैसिलिटी ऑफ पुटिंग इन देयर रिव्यूज and the location map opens up. So you can do that. So if you have any issue like this, अगर आपको आप जाना चाहते हैं तेजल से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो of course help is available, and if you need help you can go to Tejal. Okay तेजल, this is very interesting, और इसके बारे में बात करो तो बात खत्म नहीं होगी। चलो आगे। हाँ, बट एक चीज और, आपकी क्लिनिक कहाँ है और कहाँ प्रैक्टिस होती है? बाजीराव रोड पे मेरी क्लिनिक है, जिस बैंक ऑपोजिट BSNL, एंड मैं घर से भी प्रैक्टिस करती हूँ यहाँ NIBH। ओके, नाउ कमिंग टू ब्रह्म कुमारीज, मैंने तुम्हारा राजयोगा मेडिटेशन अटेंड किया था, उसमें काफी चीज एक्चुअली बहुत पॉजिटिविटी मिली मुझे लाइफ के बारे में सोचकर। एक्चुअली पहले मुझे बड़ा हर चीज में आई यूज्ड टू फील, अरे ये क्यों, ऐसा क्यों, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया। बट व्हेन आई अटेंडेड द राजयोगा मेडिटेशन सेशंस, और एक हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी तेजल से ली थी, तो उसमें ये था कि यू आर अ सोल, तो आपको कोई किसी के बोलने से, किसी के कुछ कहने से आपको असर नहीं होना चाहिए, नहीं हो। सो पहली चीज, हाउ डिड यू गेट इनटू ब्रह्मा कुमारी? One of my neighbors was going for this, and I heard actually 2 of them were there. They were chatting regarding this, and I found it very intriguing. So I went there, and I took the course, and I liked what they were saying. They were answering all my questions. Like अभी अगर कई बार ऐसे होता है कि हमको हमारी सास है या मम्मी है, हम कहते हैं अरे ये आज यही क्यों खाना है, तो बोलेंगे कि नहीं हमारी माँ कर रही थी तो आपको करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल रहे। फिर एक अजीब बात एक और देखी कि मेरे बाजू में और दूसरी ओर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठी हूँ। तो कभी सोचती हूँ मेरा जो टेक अवे है यहाँ से, वही टेक अवे इनका भी। आई मीन बीइंग लिटरली सब एट पार है। हाँ। एक बच्चा भी बैठा है और वो भी खुश है, और बूढ़ा बैठा है वो भी जो नशे से, जो कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, वो सेम है। एंड एवरीबडी हैज अ स्माइलिंग फेस। That actually kept pulling me to it, and then they give you good affirmations, and I practice those affirmations. I do meditation in the morning and I was able to solve many problems of my life. May it be physical, financial, और संबंधों के जो प्रॉब्लम होते हैं रिलेशंस में, या वो सारे प्रॉब्लम्स में ये राजयोग करके मैं सॉल्व कर पाई हूँ। तो मुझे और अच्छा लगता है। तो
मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने थोड़ा ही जाना, मुझे और जानना है इसके बारे। मुझे वही लगता है कि तेजल हैड हर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। तेजल के लिए लाइफ एक बेड ऑफ रोजेस तो नहीं रही है, जहां तक मैं जानती हूँ। शी हैज ऑल्सो फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन हर लाइफ। डिफरेंस ये है कि तेजल ने कभी किसी को दिखाया नहीं, चेहरे से हमेशा तेजल विल ऑलवेज बी स्माइलिंग। और फ्रस्ट्रेशन तो मैंने आज तक देखा नहीं, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है तेजल के चेहरे पर। आई थिंक ब्रह्म कुमारी की थिंकिंग और नॉलेज जो भी टीचिंग्स होती है उससे इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिकॉज किसी की कोई चीज बोली हुई और कोई भी सर्कमस्टांसेस है वो आपको अफेक्ट नहीं करते। अल्टीमेटली यू नो कि सब चीज रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके भी आप वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। हाँ, मैं आपसे ना एक और चीज पूछना भूल गई जो हम आई थिंक विल गो बैक टू बोवन थेरेपी, उसकी भी वर्कशॉप्स का, बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड एंड आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट थिंग। आप उसकी भी वर्कशॉप्स या प्रेजेंटेशंस देते हो हर जगह? मतलब मेरी वेबसाइट पे या बोवन थेरेपी डालने से मेरा फोन नंबर मिल जाता है आपको, वो ब्रोशर में भी रहेगा। अगर आपको कहीं पे आपका छोटा रोटरी है या इवन किटी है, 25 से 50 लोग हैं, ज्यादा होंगे तो और अच्छा है हमारे लिए। तो हम आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने आ जाते हैं। हम अपना जो भी है लेकर आएंगे, प्रोजेक्टर है ना। 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन रहता है और हाफ एन आवर के आपके क्वेश्चन आंसर्स है, या जो भी हम डेमो करके दे सकते हैं तो हम आपको डेमो करके भी ये थेरेपी दिखा सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस प्रेजेंटेशन एंड वर्ड ऑफ माउथ से ही हम ये थेरेपी प्रोपगेट कर। वही चीज होता है कि देखो हर चीज, काफी सारे थेरेपीज अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, सब कुछ है, बट जब तुम्हें सही पर्सन मिलना चाहिए, वो एक राइट कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर लोगों का में अवेयरनेस फैलती है, वी हैव ऑलरेडी गिवन प्रेजेंटेशंस इन कंपनीज, इन रोटरीज, लायंस क्लब, इन जैन सोशल्स, स्कूल्स। या तो हम लोग किए हैं ऐसे। तो अगर आपके पास भी कोई आपका छोटा ग्रुप है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। पूना में करीब 12 लोग हैं जो करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग आ जाते हैं और हम आपको आपके नजदीक का जो बोवन थेरेपिस्ट है वो दे देंगे। तो देन यू कैन गो टू हिम एंड डू द। So Tejal, now comes everything comes to the life now that we lead. आपने बहुत सारी चीजें घर पे करते हो। I know you are a very good cook also, handling your family very well, सब कुछ करते हुए कभी आपको ये लगा कि do you lack any kind of support from the family, or your family has been wholeheartedly supportive in your journey? My family has been very supportive in this whole life, and it is also more related to this Raj Yoga, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जब आप दुनिया की हेल्प करते हो तो दुनिया आपकी हेल्प करती है। Of course, हाँ। और द मेन बेसिक ग्राउंड रूल इज फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, जो शायद लोगों को पता नहीं है या इतना सोचा नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव एनर्जी आती है, जो आपको एक उमंग उत्साह आप में भर देती है। तो आप समझो ये लेवल पे हो, जैसे सिर्फ तो आप ऊपर उठने लगते हैं, आपके वाइब्रेशंस ऊपर, आपके ऊपर एक उमंग उत्साह आता है, हो जाएगा, कहने का हिम्मत खुद अपने आप को आता है कि नहीं हो जाएगा। पहले अपने आप को आता है तो हम दूसरों को कह पाए। और जब आप नेगेटिव कुछ भी सोच रहे हो ये होगा या नहीं होगा, एक डाउट सिक्के भी आता है, तो सिक्का का एनर्जी जो आपकी यहाँ है वो जाके नीचे फिर आपको इधर से कौन उठाने, हमें खुद ही अपने आप को उठाना। तो ये बात हमको ये राजयोगा से पता चलता है। एंड शिव बाबा हमेशा हमारे साथ, हमेशा कंबाइंड है बाबा, तो कंबाइंड है। मैं सदा आपके साथ हूँ, साथी हूँ, आपके अंदर ही है, साथ भी हूँ और साथी भी हूँ। तो एंड वो सर्वशक्तिवान है, तो वो उनके साथ अपनी सारी एनर्जीज लेके आते हैं और वो सिर्फ इतना कहते मुझे याद करो, बस छोटी सी चीज है। यस और उन्हें याद करो, दिल से याद करो तो आपके सारे काम हो जाते हैं। ट्रस्ट प्लेज अ मेजर रोल, बस वही चीज है। एंड एक्चुअली हर चीज का जो वो कहते हैं ना, जैसे हर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, और प्रॉब्लम है तो छोड़ दो,
दैट विल बी सॉल्व। यस, और हर बार पॉजिटिव, मतलब दिन शुरुआत से ही पॉजिटिव। अच्छा लेट उठे फिर भी पॉजिटिव, कुछ गड़बड़ हुई तो भी पॉजिटिव, सब बात में पॉजिटिव करते जाते हैं तो आपकी एनर्जीज नीचे नहीं जाती। हाँ ऑफ कोर्स, और एनर्जी मेन है। होता है ना कोई कभी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, पास्ट में ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली योर एनर्जी गोज डाउन, इट्स सिंक्स नीचे, सिंकिंग प्रोसेस होती है एंड यू सडनली रिमेम्बर अबाउट सम सेलिब्रेशन, चलो दिवाली का ही थॉट आता तो हैप्पीनेस याद आती है, तो दैट्स बट वो समझ के लिए, समझना सही समझ के लिए, क्योंकि सेव जो करना है वो अपनी मेंटल स्टेट को सेव करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द होल लाइफ। या एग्जैक्टली। और आपके लिए एक गुड लाइफ आपने किसी ने लिव की है, जी है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए गुड लाइफ में? आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और क्या करना चाहिए कि आपने आप टुवर्ड्स एंड आपको ये लगे कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छी लाइफ ली। एक राज बताऊं, हमें क्या चाहिए? हमेशा एंड ऑफ द डे ऐसा चाहिए कि मुझे खुशी मिले। हाँ राइट, हाँ, खुशी मेन है। हाँ, खुशी मिल गई तो आप पहले शांत भी रहे होंगे, शक्ति भी रही होगी, सब रहेगा, तो एंड रिजल्ट इज खुशी। एंड खुशी किससे मिलती है? खुशी सेवा करने से। आप अभी देखो पेड़ भी है तो आम दे के खुश हो रहा है, नदी भी पानी दे के खुश हो रही, तो हम लेके क्या करने वाले? हम लेके तो खुश नहीं होने वाले, दे के ही खुश हो, और जितना देते उतना प्रकृति हमको और देती। ग्रेट। सो वी हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स फ्रॉम तेजल। आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा भी, हैप्पीनेस दोगे, खुशियां दोगे तो खुशियां आपको मिलेगी। उसके साथ में तेजल से मैंने आज ये सीखा, और वही मैं सबके साथ में ये कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। जो कभी भी कोई भी सिचुएशन है जिसमें अगर निगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए पॉजिटिव, कभी कोई जो चीज अच्छी है उसमें उसको ढूंढ कर उसको सोचो, तो आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है, आप में एंथुजियाज्म आता है एंड योर लाइफ बिकम्स गुड, हैप्पी लाइफ। तो इसी के साथ आज हम अपना कॉन्वर्सेशन विद तेजल खत्म करते हैं। बट इन केस यू हैव एनी सजेशंस, anything you want to discuss on this channel, do write in our comment section. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If you think we have earned your appreciation and support, do like and share this video and subscribe to your very own channel, Women Wise. Also, hit the bell icon to get the notification whenever we upload a new video. And that's it for now. Bye bye. See you in the next video.